Hello friends, today we are going to attend the story The Last Leaf. This story has been created by O. Henry. O. Henry is a famous story writer of his time. He wrote many stories, but this story The Last Leaf is one of the beautiful and famous stories of O. Henry. Because the background of this story is a very beautiful and interesting. इस स्टोरी की जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी दिलचस्प है और आज हम इसे अटेंड करेंगे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बीए फर्स्ट ईयर के जितने भी फिक्शंस हैं, स्टोरीज़ हैं, उनमें द लास्ट लीफ एक सबसे अच्छी कहानी के रूप में जानी जाती है। तो अगर हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी आनंद आएगा। लेट अस स्टार्ट। In this story, there are several characters. The first character is Shiv, and the second character is Jhansi. Third is Barman, and fourth is the name of a famous place known as Greenwich. This story, The Last Leaf, takes place in the village Greenwich. Greenwich is the village which is situated in New York. Each and everyone will be familiar of such a name, New York, because New York is situated in USA. USA is very famous country of the world. We know that United States of America is very popular in all over the world. तो ये कहानी यूएसए के न्यूयॉर्क के ग्रीनविच नामक गांव की है। वी आर गोइंग टू अटेंड दिस स्टोरी। हम इस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। In this story, the first character is Shiv and second is Jhansi. Shiv and Jhansi both met by chance in a restaurant. शिव और झांसी दोनों अचानक एक रेस्टोरेंट में मिलती हैं because both were sitting face to face in that restaurant. Luckily they discussed each other. सौभाग्य से दोनों ने आपस में बातें की। During their conversation, they found that the ideology of both the girls were same. उनके आइडियोलॉजी, उनके नोशंस, उनके आइडियाज एक जैसे थे। फिर क्या था? शिव एंड झांसी बोथ became close friend. शिव और झांसी दोनों क्लोज फ्रेंड्स हो गई। आफ्टर दैट दे डिसाइडेड टू लिव इन द सेम अपार्टमेंट। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे दोनों एक ही कमरे में रहेंगे। वाई इज दिस? बिकॉज बोथ वर ग्रेटली इंटरेस्टेड इन द वर्क ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग वॉज द प्रोफेशन ऑफ बोथ द गर्ल्स शिव एंड झांसी। पेंटिंग इन दोनों का प्रोफेशन था। पेंटिंग से दोनों की दिलचस्पी थी। पेंटिंग में दोनों का लगाव था। दैट इज वाई बोथ द गर्ल्स केम इन ग्रीनविच विलेज एंड देयर दे हायर्ड एन अपार्टमेंट अपर स्टोरी ऑफ स्टूडियो। उन्होंने स्टूडियो के ऊपर की बिल्डिंग में उन्होंने एक कमरा ले लिया। लेटर ऑन दे स्टार्टेड लिविंग देयर, और वहां रहने लगे। द स्टूडियो, देयर वाज आल्सो एन ओल्ड मैन लिव्ड एंड द ओल्ड मैन हैड स्टूडियो एंड दिस स्टूडियो वाज बिलोंग टू बेयरमैन। बेयरमैन वाज आल्सो एन आर्टिस्ट। ही वाज अ फेमस पेंटर, but his painting was not famous. He was very old. He was a great drunker. He was a great drinker. वह एक शराबी था। He was habitual for making the painting and drinking the wine. वो पेंटिंग करता, शराब पीता, ये उसकी आदत थी। और छोटी छोटी पेंटिंग करके इसे बेचता। He used to make some small paintings and sell it. In this way he was carry on his livelihood. वह छोटी छोटी पेंटिंग बनाता, उन्हें बेचता, और इस प्रकार वह अपना जीवन जी रहा होता है। He tried the best to make his masterpiece. उसने एक मास्टरपीस बनाने की कोशिश की, but failed. Perhaps most of the students they are not familiar with such a word like masterpiece. Masterpiece means one of the beautiful creation.
एक ऐसी रचना सर्वोत्कृष्ट, जो सर्वोत्तम हो, सबसे उत्तम हो, इसे हम मास्टरपीस कहते हैं। बेयरमैन गॉडफील्ड मेनी टाइम्स, उसने बहुत बार कोशिश की, लेकिन उसका बैड लक कि बेयरमैन अपनी इस पेंटिंग को कभी पूरा न कर सका। इसे इस बात का गम था, काश कि मैं एक मास्टरपीस बना लूं, लेकिन वो बना न सका। नाउ another thing is that Shiva and Jhansi, we know that they were close friends. When it was the month of November, जब नवंबर का महीना आता है, then a stranger appeared in Greenwich village. This stranger was known as pneumonia. यह stranger जो वहां आता है, इसे न्यूमोनिया के नाम से हम जानते हैं। We know that very well. Pneumonia is a very fearful disease, and this pneumonia spread all over the village. यह न्यूमोनिया गांव के सारे लोगों में धीरे धीरे फैल गई, in which most of them recovered with this, and some of them had lost their lives. और कुछ का जीवन समाप्त हो गया, अर्थात न्यूमोनिक होने के कारण वो मारे गए। झांसी आल्सो सफर्ड फ्रॉम न्यूमोनिया। झांसी भी न्यूमोनिक हो गई, झांसी भी न्यूमोनिया से पीड़ित हो गई, बट सी वॉज नॉट। शिव बिल्कुल स्वस्थ थी, झांसी सफर्ड फ्रॉम न्यूमोनिया, झांसी न्यूमोनिया से ग्रसित हो जाती है। डे बाय डे हिज हेल्थ वॉज गोइंग डाउन, इन द प्लेस ऑफ रिकवरिंग शी वॉज गोइंग वर्स कंडीशन। वह अच्छा होने के बजाय वर्स कंडीशन में पहुंचती जा रही है, उसकी स्थिति और खराब से खराब होती जा रही है। देन शिव कॉल्ड द डॉक्टर, शिव ने डॉक्टर को बुलाया। व्हेन द डॉक्टर केम, द डॉक्टर हैड डन द डायग्नोसिस ऑफ झांसी। देन डॉक्टर डिक्लेयर्ड दैट शी हैड ओनली 10% चांस टू शेव। उसे बचने के केवल 10% चांस है। नियरली 90% शी कैन नॉट सर्वाइव। 90% ये स्थिति थी कि वो सर्वाइव नहीं कर सकती थी। ये बात डॉक्टर ने शिव को अलग कमरे में ले जाकर के बताया कि देखो, झांसी की जो स्थिति है वो 10% उसके जीने की है, 90% वो सर्वाइव नहीं करेगी, और उसकी हालत बिगड़ती जा रही है, और ठीक भी कैसे हो सकती, वह ठीक नहीं हो सकती, बिकॉज झांसी इज इन डिप्रेशन। Pneumonia is not a fearful disease, but depression is most dangerous thing for झांसी। निमोनिया भले झांसी को न कुछ बिगाड़ पाए निमोनिया, लेकिन डिप्रेशन जो है वो झांसी को कभी ठीक नहीं होने देगा। डॉक्टर आस्क्ड, कैन यू टेल मी व्हाट इज द रीजन ऑफ हर डिप्रेशन? क्या तुम मुझे बताओगे उसके डिप्रेशन का कारण क्या है? झांसी डिप्रेस क्यों है? शिव टोल्ड द डॉक्टर, शिव ने डॉक्टर को बताया कि शी हैड नो अदर रीजन, हाउएवर आई नो दैट शी वाज डिजायरस टू मेक द पेंटिंग ऑफ Naples, but she felt perhaps this is the thing of her depression. Further, doctor asked, here is no matter of any love affairs. कहीं ऐसा तो नहीं कोई लव अफेयर हो? Jansi thinking about her lover and she got unsuccess in love, so that she got depressed. But she said that, however, I know that such types of things, such types of things are not there with Jansi. Jansi के साथ ऐसी कोई बात नहीं है, झांसी का कहीं कोई अफेयर नहीं है। झांसी केवल अपनी पेंटिंग के प्रति सतर्क रहती थी। पेंटिंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ तक मुझे मालूम है कि अभी बहुत मायने नहीं रखती, बिकॉज शिव एंड झांसी बोथ वर क्लोज। शिव और झांसी दोनों गहरे मित्र थे, इसलिए शिव झांसी को अच्छी तरह से जानती थी और झांसी शिव को जानती थी। झांसी वॉज लाइंग इन द बेड इन फ्रंट ऑफ अ विंडो। झांसी के बिस्तर के ठीक बगल में खिड़की थी, झांसी बेड पर लेटी रहती थी। शी वॉज वॉचिंग वेरी केयरफुली आउट ऑफ द विंडो, देन शी सॉ अ क्रीपर। झांसी ने एक क्रीपर देखा
उस क्रीपर की जो पोजीशन थी कि उस क्रीपर में ढेर सारी पत्तियां लगी हुई थी। उस क्रीपर में ढेर सारी पत्तियां लगी होती हैं। झांसी क्रीपर को देखती है। वन बाय वन द ब्रांचेस ऑफ द लीव्स गोइंग डाउन, एक एक करके उस क्रीपर से पत्तियां गिरती हैं। झांसी थॉट दैट व्हेन द लास्ट लीफ will fall down on the ground with that leaf I will also die। झांसी के मन में एक पूर्वाग्रह हो गया था, एक बात घर कर गई थी कि जिस प्रकार से इस क्रीपर की, इस वृक्ष की पत्तियां एक एक करके जमीन पर गिर रही हैं, वैसे वैसे मेरे भी हालात गड़बड़ हो रहे हैं, और ऐसे ही जिस दिन लास्ट पत्ती गिरेगी उस दिन मैं भी मर जाऊंगी। दैट वॉज द कॉन्सेप्ट, दैट वॉज द फीलिंग ऑफ झांसी। झांसी की यही फीलिंग थी कि जिस दिन लास्ट पत्ती गिरेगी उस दिन मैं भी मर जाऊंगी, मुझे कोई बचा नहीं सकता, इसी लास्ट लीफ के साथ मेरा भी अंत हो जाएगा। ये बात उसके मस्तिष्क में घर कर गई थी, ये बात निकलने वाली नहीं थी। When the doctor departed from there, जब डॉक्टर वहां से चला जाता है, then she went to Berman, the artist who was living at the ground floor in his studio। When she went to Berman, जब वेयरमैन के पास जाती है, then she shared all these things, उसने झांसी के बारे में वेयरमैन से शेयर किया। वेयरमैन said that she is foolish girl, how foolish girl is झांसी is। झांसी कितनी मूर्ख लड़की है, she should not think like that, उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि किसी की कहीं पत्ती कोई लास्ट गिरेगी तो कोई मरेगा, ये तो बहुत ही दकियानुसी बातें हैं, ये बड़े छोटे ख्याल की बातें हैं। हमें ऐसी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति का जीवन किसी वृक्ष से, किसी पहाड़ी से, किसी नदी से, कि कोई नदी बहना बंद हो जाए तो व्यक्ति मर जाएगा, वृक्ष गिर जाए तो मर जाएगा, तो दीज आर सुपरस्टिशंस, ये सुपरस्टिशंस है, ऐसे नहीं होता है। ऐसा बेयरमैन ने बोला शिव से। आफ्टर दैट शी वेंट अवे, इसके बाद शिव वहां से चली जाती है। झांसी सेड टू शिव, प्लीज पुट ऑन द कर्टेन, कर्टेन कर दो, मैं सोने जा रही हूँ। झांसी स्लेप्ट, झांसी सो जाती है। दैट नाइट अ फियरफुल स्टॉर्म हैपेंड इन दैट विलेज, उस रात एक भयानक तूफान आता है, बारिश बहुत जोरों की होने लगती है। और दिस आर्टिस्ट बेयरमैन आल्सो देयर एट दैट टाइम, बेयरमैन उस समय वहां था। सेकेंड डे द डॉक्टर केम and the doctor told Shiv and Jhansi, Bearman is also suffering from pneumonia, he became pneumonic। Bearman भी pneumonic हो गए। He was sent to hospital, उसे हॉस्पिटल भेजा गया। They found that it was bad luck of Bearman that he died। Bearman का ये बैड लक था कि बेचारा मारा गया। He could not survive, Bearman could not survive, Bearman जी न सका, निमोनिया से लड़ न सका, बेचारा बेयरमैन मारा गया। When doctor told this, जब डॉक्टर ने बताया, both the friends became very shocked। यह सुनकर दोनों को सदमा लगा कि उफ, कहीं झांसी के साथ भी ऐसा ना हो जाए। The doctor saw that झांसी was recovering, झांसी रिकवर कर रही थी। Why is this? When before coming the doctor, when she opened the curtain of the window, when she opened the window, then she saw that there was last leaf, it was hanging to one of the branch of the tree। झांसी ने जब खिड़की से देखा तो उसे देखा कि एक पत्ती अभी भी वृक्ष से लटकी हुई थी, डाली से लटकी हुई थी, वो गिर नहीं रही थी। झांसी थॉट अगेन एंड अगेन अबाउट दिस लास्ट लीफ, झांसी ने बार बार उसके बारे में सोचा। उसने कहा कुछ तो है, कुछ तो है इस पत्ती के साथ, ये पत्ती अकेले स्ट्रगल कर रही है, इतना बड़ा तूफान आया और ये सारी की सारी पत्तियां गिर गई, लेकिन एक पत्ती बची रह गई। हियर समथिंग बिहाइंड दिस, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। इसलिए उसने कहा कि मैं भी सरवाइव कर सकती हूँ, ये पत्ती अकेले इतना सामना कर सकती है तो मैं भी सरवाइव कर सकती हूँ। झांसी को थोड़ा सा होप आया, झांसी बड़ी खुश हुई, झांसी को लगा कि अब हम ठीक हो जाएंगे। झांसी अब डिप्रेशन से बाहर हो गई थी। आफ्टर द डायग्नोसिस ऑफ द डॉक्टर, the doctor told that Jhansi recovering very fast, Shiv,
सिर्फ देखो झांसी बड़ी तेजी से रिकवर हो रही है। नाउ सी इज आउट ऑफ डेंजर, अब वो खतरे से बाहर है, निमोनिया भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नाउ शी कुड रिकवर बाय योर गुड केयर, अगर तुम्हें इसका अच्छा केयर करोगी तो यह शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। द डॉक्टर वेंट अवे फ्रॉम देयर, डॉक्टर वहां से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद शिव डिस्कवर्ड some information about Bearman. Then she found that night when the storm came, this artist Bearman, who arranged a ladder, paint and brush, he went under this tree, and after going there, this man made a leaf. इस आदमी ने एक लीफ की पेंटिंग कर डाली। एंड ही स्पेंड द होल नाइट विथ लैंटर्न, लालटेन लेकर वह आदमी जाता है और उस वृक्ष की ठीक एक डाली से उसने एक पत्ती बनाई। एंड ही पेंटेड दिस ब्यूटिफुली। when we know that when the storm came, all the leaves fall down one by one. This one is the artificial leaf, but Jhansi didn't know this. झांसी को नहीं पता था कि आर्टिफिशियल लीफ है। एंड दिस वाज पेंटेड बाय द बेयरमैन, इस लीफ को बेयरमैन ने पेंट किया था। बेयरमैन डाइड बट ही हैड गिवन अ लाइफ, न्यू लाइफ टू झांसी। बेयरमैन तो मर गया लेकिन उसने झांसी को एक नया जीवन दे दिया। आफ्टर द डेथ ऑफ बेयरमैन गॉट सक्सेस फॉर मेकिंग हिज मास्टरपीस। बेयरमैन तो मर गया लेकिन उसे अपनी मास्टरपीस दे गया। दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग वाज अ मास्टरपीस ऑफ बेयरमैन। यह पेंटिंग जो थी वह बेयरमैन की एक मास्टरपीस साबित हुई। अपने जीते जी उसने कोई मास्टरपीस तो नहीं बनाई, लेकिन मरने के बाद वह किसी को जीवन दे गया और एक अपनी उत्कृष्ट रचना भी वहाँ छोड़ गया। हियर दिस स्टोरी कम्स टू एट इट, यहाँ ये कहानी अंत की ओर जाती है। बट दिस स्टोरी गिव्स अस अ मैसेज, यह कहानी हमें एक मैसेज देती है वी शुड नॉट थिंक अबाउट द सुपरस्टिशंस। इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज लाइक फॉरेन कंट्रीज there you can find no such types of superstitions, but here in our country we are greatly suppressed by such types of superstitions. We should not follow the superstitions, we should think about the reality and some real facts. हमें सुपरस्टिशंस की तरफ ध्यान ना दे करके हमें वास्तविक तथ्यों को सोचना चाहिए, जानना चाहिए और वास्तविकता तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन एक सूचना है कि इस चैनल से, इस एकेडमी से, आयुष एकेडमी में क्लास 9 से लेकर के MA तक की किसी भी क्लास को यदि आप चाहते हैं, मेनली लिटरेचर, आप लिटरेचर 9th क्लास से MA तक कि इंग्लिश लिटरेचर आपको यह चैनल प्रोवाइड करता है। यदि आप लोगों को किसी भी क्लास की, किसी भी लेसन की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और इन्फॉर्म कर सकते हैं और आपको 1-2 दिन के अंदर उस कक्षा की वीडियोस आपको उपलब्ध हो जाएंगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।